رائیونڈ اجتماع کا پہلا مرحلہ مکمل، اختتامی دعا کے بعد شرکاء کا انخلاء شروع ہو گیا۔ پہلے موٹر سائیکل سٹینڈ پہ رکشہ سٹینڈز خالی کروائے جائیں گے۔ انخلاء مکمل ہونے تک شہری رائیونڈ روڈ پر سفر سے گریز کریں اور رائیونڈ سٹی آنے والے تمام روڈز پر شرکاء کی گاڑیوں کو یک طرفہ چلایا جائے گا۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز زین علی سے۔ جی زین، آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، رائیونڈ اجتماع کا پہلا مرحلہ جو ہے وہ دعا کے بعد اختتام ہو گیا ہے، جس کے بعد رائیونڈ کے شرکاء کا جو انخلاء ہے وہ جاری ہے اور اب تک 20 اسٹینڈ جو ہیں وہ خالی کروا لیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے ترجمان ٹریفک پولیس کے مطابق موٹر سائیکل رکشہ اسٹینڈ کو جو ہے وہ خالی کروا لیا گیا اور کار ویگن اسٹینڈ سے گاڑیوں کا انخلاء جو ہے وہ جاری ہے۔ 20% اسٹینڈ جو ہے وہ خالی ہو چکے ہیں، جبکہ اس حوالے سے تمام ڈویژن اور سرکل افسران رائیونڈ پر جو ہے وہ موجود ہیں اور اس حوالے سے ٹریفک پولیس کی جانب سے یہ ہدایت بھی جاری کی ہے کہ جب تک انخلاء جو ہے وہ جاری ہے، شہری جو ہے وہ رائیونڈ روڈ پر سفر کرنے سے گریز کرے۔ انخلاء جو ہے وہ جاری ہے، 20% اسٹینڈ جو ہے وہ خالی کروا لیے گئے ہیں۔ کار موٹر سائیکل رکشے کے اسٹینڈ جو ہے وہ خالی کروا لیے گئے، جبکہ اس کے بعد کار ویگن اور اسٹینڈ کی گاڑیوں کا انخلاء جو ہے وہ جاری ہے۔ جی زین، یہ بتائیے کہ سیکیورٹی کے کیا خاص انتظامات کیے گئے ہیں اور وارڈنز کے حوالے سے بتائیے کہ کتنے وارڈن اس وقت ڈیوٹی پر مامور ہیں؟ جی بالکل، رائیونڈ اجتماع میں جو ہے وہ تقریباً 1000 کے قریب ٹریفک وارڈن جو ہیں وہ تعینات کیے گئے ہیں، جبکہ اس حوالے سے سرکل اور لاہور پولیس کی جانب سے بھی ٹریفک کے جو ہے لاہور پولیس کی جانب سے بھی جو ہے وہ پولیس اہلکار جو ہے وہ تقریباً 2000 سے زیادہ پولیس اہلکار جو ہے وہ تعینات کیے گئے ہیں۔ رائیونڈ اجتماع جو ہے وہ اب تک پہلا مرحلہ جو ہے اس کا اختتام پذیر ہوا، کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہوا، جس کی دعا اختتام کے بعد جو ہے انخلاء جو ہے وہ پہلے مرحلے کے بعد شرکاء کا انخلاء جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، جس کے بعد اب ٹریفک پولیس کی جانب سے بھی رائیونڈ روڈ پر جو ہے وہ اس حوالے سے دباؤ دیکھا جا رہا ہے اور ٹریفک پولیس کی جانب سے بھی جو ہدایات جو ہیں وہ شہریوں کو جاری کی گئی ہیں کہ رائیونڈ روڈ پر جو سفر کرنے سے جو ہے وہ گریز کرے۔ جی زین، یہ بھی بتائیے کہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ رائیونڈ اجتماع کے بعد مین جی ٹی روڈ اور رائیونڈ روڈ پر ٹریفک کا دباؤ رہتا ہے اور شہریوں کو ٹریفک کے حوالے سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس حوالے سے کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ رائیونڈ روڈ کیونکہ انخلاء جو ہے وہ ابھی جاری ہے رائیونڈ جی روڈ پر اجتماع کے شرکاء کا، جس کے بعد ٹریفک پولیس کی جانب سے ہدایت جو ہے وہ اس پہ جاری کی گئی ہے کہ رائیونڈ روڈ پر جو شہری جو ہے وہ غیر ضروری سفر کرنے سے گریز کرے، کہ جہاں پر بھی جو ہے وہ رش زیادہ پڑتا ہے، ٹریفک کا دباؤ زیادہ ہوتا ہے، تو اس حوالے سے ٹریفک پولیس جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ ڈائیورژن لگا کے ٹریفک کو جو دوسری طرف موڑ رہی ہے۔ ٹریفک کے شرکاء کا دباؤ زیادہ ہونے کی وجہ سے اس وقت جو رائیونڈ روڈ پر ٹریفک کا دباؤ جو ہے وہ زیادہ دیکھنے میں آ رہا ہے، جس زین حوالے ہمارے سے ساتھ رہے گا، ہمیں جوائن کیا ہے نمائندہ لاہور نیوز محمد افضل نے۔ افضل، آپ بتائیے کہ اس وقت رائیونڈ روڈ کی کیا صورتحال ہے اور یہ بھی بتائیے کہ کون کون سے اہم علماء اس رائیونڈ اجتماع میں موجود تھے؟ جی بالکل، اخلاق کا سلسلہ تو جاری ہے، لیکن رائیونڈ روڈ پر مانگا روڈ، لاہور روڈ اور دیگر جو روڈز ساتھ شامل ہوتے ہیں ان پہ ٹریفک کا شدید دباؤ ہے اور عالمی اجتماع میں صبح جو بیان ہوا وہ علامہ خورشید احمد صاحب کا تھا۔ جی اس کے بعد دعا جو کروائی گئی مولانا محمد ابراہیم صاحب کی طرف سے، یہ اختتامی دعا کرائی گئی جس میں ملک پاکستان کی سلامتی خوشحالی کے لیے بھی دعائیں کی گئی۔ اس موقع پر شرکاء کی طرف سے رفت امیز روح پرور مناظر بھی دیکھے گئے اور اس میں موجودہ صورتحال جو اس وقت ہے، اس وقت ٹریفک کی روانی کے لیے ٹریفک وارڈنز کو بھی الرٹ کر دیا گیا، اضافی ٹریفک وارڈن بھی تعینات کر دیے گئے ہیں اور ٹریفک کے روٹ پر ٹریفک رواں دواں ہے۔ بہت اور شکریہ محمد افضل اور زین علی، آپ ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے۔ رائیونڈ اجتماع کا پہلا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے، جبکہ انخلاء کا عمل بھی جاری ہے۔ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ میں انتظامیہ کی مبینہ غفلت، مینٹل ہاسپٹل میں زیر علاج 33 سالہ شخص نے مبینہ خودکشی کر لی۔ نیاز احمد نے بیڈ کی چادر سے دروازے کے جنگلے سے باندھ کر پھندا لگایا۔ منشیات کی عادی 33 سالہ نیاز کو 3 روز قبل ہسپتال منتقل کیا گیا۔ انتظامیہ کی جانب سے وارڈز میں کوئی حفاظتی انتظامات نہیں کیے گئے تھے۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں محمد بلال سے۔ بلال، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، یہ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ میں انتظامیہ کی شدید غفلت کھل کر سامنے آ گئی ہے، جس میں مینٹل ہسپتال میں زیر علاج 33 سالہ نیاز احمد نے خود کو پھندا دے کر خودکشی کر لی ہے۔ ذرائع کے مطابق مریض نے بیڈ کی چادر کو دروازے کے جنگلے کے ساتھ باندھ کر خودکشی کی ہے اور
نیاز احمد ڈرگ ایڈکٹڈ تھا اور علاج کے لیے مینٹل ہاسپٹل میں زیر علاج تھا. گزشتہ روز شام 5:07 پر اس کی جانب سے خودکشی کی گئی. مریض کی جو فائل رپورٹ ہے اس کے مطابق لاہور کے رہائشی نیاز احمد 2 تاریخ کو ہسپتال میں داخل ہوتا ہے اور اپنے ڈرگ ٹریٹمنٹ کے علاج کے لیے آتا ہے, اور انتظامیہ کی جانب سے وارڈ سے کوئی حفاظتی انتظامات بھی نہیں کیے گئے تھے اور عملہ بھی موقع پر موجود نہیں تھا اور CCTV کیمرے بھی نہیں تھے, اور ہسپتال انتظامیہ کی جانب سے معاملے کو دبانے کی کوشش بھی کی گئی اور ہسپتال انتظامیہ کی جانب سے مریض کی موت پر کوئی کمیٹی بھی تاحال تشکیل نہیں دی جا سکی. اس حوالے سے نگران صوبائی وزیر پنجاب پروفیسر جوید اکرم سے جب ابھی ہماری بات ہوئی ہے تو ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ اس معاملے کی مکمل تحقیقات کریں گے اور انتظامیہ سمیت ڈیوٹی پر موجود عملہ بھی اس کا ذمہ دار ہے, اور تاحال اس کی موت کو بھی ابھی محکمہ اسپیشلائز کو بھی نہیں آگاہ کیا گیا, جبکہ ہسپتالوں میں مریضوں کے ساتھ اس طرح کے واقعات بالکل ایکشن جو ہے ان کے خلاف لیا جائے گا. جی آپ کا شکریہ بلال. ڈینگی مچھر کے ڈنک مزید تیز ہے. لاہور میں 24 گھنٹوں کے دوران مزید 107 مریض رپورٹ ہو گئے ہیں. صوبہ بھر میں 213 افراد میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہوئی ہے. شہر کے ہسپتالوں میں ڈینگی کے 68 مریض زیر علاج ہیں. ڈینگی سے بچنے کے لیے شہری اپنے ماحول کو صاف اور خشک رکھیں. محمد بلال سے مزید جانتے ہیں. بلال, آگاہ کیجیے. جی بالکل, لاہور سمیت پنجاب بھر میں ڈینگی وائرس کے کنفرم جو مریض ہیں بدستور سامنے آ رہے ہیں, اور محکمہ صحت کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران پنجاب بھر میں ڈینگی وائرس کے 213 جبکہ لاہور کے اندر 107 جو نئے مریض ہیں یہ سامنے آئے ہیں, جس کے بعد اب تک پنجاب بھر میں مصنوعی کیسز کی تعداد 10,000 سے تجاوز کر چکی ہے. جبکہ اس کے ساتھ ساتھ راولپنڈی, ملتان, فیصل آباد, گجرات, گوجرانوالہ میں بھی کیسز بڑی تعداد میں رپورٹ ہو رہے ہیں. اس وقت لاہور کے ہسپتالوں میں تقریباً 68 جبکہ پنجاب بھر کے تمام سرکاری ہسپتالوں میں تقریباً 130 سے زائد جو مریض ہیں یہ زیر علاج ہے. اس حوالے سے محکمہ صحت کی جانب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ شہریوں کو چاہیے کہ جو ڈینگی ایسوپکس بنائی گئی ہے اس سے عمل درآمد کریں تاکہ ڈینگی وائرس سے محفوظ رہا جا سکے. جی ٹھیک ہے بلال, بہت شکریہ. ڈی سی لاہور کی ہدایت پر MCL کی ٹیمیں قبضہ مافیا کے خلاف متحرک 24 گھنٹوں کے دوران 114 مقامات سے تجاوزات ہٹائی گئیں. 62 افراد کو نوٹس, 39 کے چالان کیے گئے, 472 بینرز اور سٹیمرز ہٹائے گئے, 4 چیل گوشت پوائنٹس کو ختم کیا گیا. تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز عمران اکبر سے. جی عمران. آج بالکل ڈی سی لاہور ایڈمنسٹریٹر میٹروپولیٹن کارپوریشن رافیہ حیدر کی ہدایت پر MCL ٹیمیں جو ہیں وہ اس وقت فیلڈ میں موجود ہیں. گزشتہ 24 گھنٹوں میں ریگولیشن ونگ نے 114 تجاوزات کا خاتمہ کیا, 62 نوٹس کیے, 39 چلان جاری کیے. ایڈمنسٹریٹر لاہور رافیہ حیدر کا کہنا ہے کہ پلاننگ ونگ نے 3 غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائی کی, 472 بینر سٹیمرز ہٹائے, چیل گوشت کے 4 پوائنٹ ختم کیے. سروسز ونگ نے 370 اسٹریٹ لائٹس کی مرمت و بحالی کی. خستہ حال سڑکوں پر 5154 اسکوائر فٹ پیچ ورک کا کام کیا گیا. شہریوں سے گزارش ہے کہ اپنے علاقے کے مسائل سے آگاہ کریں. ایڈمنسٹریٹر MCL رافیہ حیدر کا کہنا ہے کہ اس وقت انتظامیہ جو ہے متحرک ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ چیف آفیسر کارپوریشن اقبال فرید نے تمام زونل افسران کی کارروائیوں کی براہ راست نگرانی کر رہے ہیں. جی آپ کا بہت شکریہ عمران. غیر قانونی طور پر مقیم افراد کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے. ڈیڈ لائن کے بعد غیر قانونی افراد کا محفوظ انخلاء حکومت کی ترجیح ہے, اور گزشتہ روز 7135 غیر قانونی افغان شہری وطن واپس روانہ ہوئے ہیں. تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں, غیر قانونی طور پر مقیم افراد کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے, اور ڈیڈ لائن کے بعد غیر قانونی افراد کو محفوظ انخلاء حکومت کی ترجیح بھی ہے, اور گزشتہ روز 7135 غیر قانونی افغان شہری وطن واپس روانہ ہوئے ہیں. اس وقت آپ کو اہم خبر کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں. غیر قانونی طور پر مقیم افراد کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت ون ونڈو آپریشن کے حوالے سے اجلاس ہوا. لاہور میں سرمایہ کاروں اور صنعت کاروں کے لیے ون روف ون سٹاپ سلوشن پر تجاویز کا جائزہ لیا گیا. ون ونڈو سینٹر کے لیے آپریشنل ریویو کمیٹی اور اسٹیئرنگ کمیٹی قائم. لوکل گورنمنٹ, ماحولیات, ہاؤسنگ اور دیگر محکموں کے آفیسرز ون ونڈو سینٹر میں موجود ہوں گے. تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں لیاقت علی سے. لیاقت, اپڈیٹ کیجیے گا. عظیم نظام وزیر اعلیٰ پنجاب سید بسر رضا نقوی کی زیر صدارت وزیر اعلیٰ آفس میں ون ونڈو آپریشن کے قیام کے حوالے سے خصوصی اجلاس منعقد ہوا, جس میں لاہور میں سرمایہ کاروں اور صنعت کاروں کے لیے ون روف ون اسٹاپ سلوشن پر تجاویز کا جائزہ لیا گیا. اجلاس کو بتایا گیا کہ فیڈمک اور پنجاب اسمال انڈسٹری کارپوریشن ون ونڈو آپریشن سینٹر میں سروسز فراہم کریں گے. لوکل گورنمنٹ, ماحولیات, ہاؤسنگ اور دیگر محکموں کے بااختیار افسران ون ونڈو سینٹر میں موجود ہوں گے. ڈیسک اور سی گیس کے کاؤنٹر بھی ان سینٹرز میں قائم کیے جائیں گے, اور ون ونڈو سینٹر میں اراضی انتقال, نقشہ پاس کرنے
और माहौलियात के NOC की सूरत में यसर होगी। वन विंडो सेंटर के काउंटर के अफसरान दरखास्त इंतकाल का फॉर्म भी खुद पूर करेंगे और वन विंडो सेंटर पर ऑपरेशन 5 मराहल में मुकम्मल कर लिया जाएगा। 10 दिन के अंदर कार्रवाई मुकम्मल ना होने पर मुतल्लिका सेक्रेटरी के डैशबोर्ड पर सुर्ख निशान नमूदार होगा, जो कि उसकी नाक़िस परफॉर्मेंस की अलामत होगा। और वन विंडो सेंटर के लिए ऑपरेशनल रिव्यू कमेटी और स्टीयरिंग कमेटी भी तश्कील दे दी गई है। जी चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ को 3 माह की तोसी मिल गई। ज़का अशरफ 5 फरवरी तक ओहदे पर बरकरार रहेंगे। निगरान वज़ीर आज़म ने PCB मैनेजमेंट कमेटी की मुद्दत में 3 माह की तोसी कर दी। तफसीलात के लिए बात करते हैं मोहम्मद उसामा से। उसामा आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट कमेटी को 3 माह की तोसी मिल चुकी है। निगरान वज़ीर आज़म और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पैटर्न इन चीफ अनवारुल हक काकड़ ने PCB मैनेजमेंट कमेटी की मुद्दत में 3 माह की तोसी कर दी है। ज़का अशरफ इस वक्त 10 रुकनी मैनेजमेंट कमेटी का सरबराह है। ज़का अशरफ की क़ियादत में मैनेजमेंट कमेटी जुलाई 2023 में 4 माह की मुद्दत के लिए बनाई गई थी और वज़ीर आज़म ने अपना इस्तेकाक इस्तेमाल करते हुए इस कमेटी को 3 माह की तोसी दे दी है। याद रहे कि ज़का अशरफ की मैनेजमेंट की सरबराही में जो कमेटी कायम थी उसकी 5 नवंबर को आखिरी तारीख थी। आज जो उसका आखिरी रोज चल रहा था, तो वज़ीर आज़म काकड़ ने अपना इस्तेकाक इस्तेमाल करते हुए इस मैनेजमेंट कमेटी की मुद्दत में 3 माह की मजीद तोसी कर दी है। जी ठीक है उसामा, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए कुछ बात करते हैं महंगाई की। टमाटर भी महंगाई की ट्रेन पर सवार हैं। मार्केट में टमाटर 240 से 280 रुपए तक बेचे जाने लगे। लहसुन 600, अदरक 700 रुपए किलो तक फ़रोख्त। ब्रायलर बदस्तूर गरीब की पहुंच से बाहर। मुर्गिया गोश्त 12 रुपये सस्ता, फ़ी किलो कीमत 458 रुपये हो गई। फार्मी अंडों की कीमत 329 रुपये फ़ी दर्जन पर बरकरार। तफसीलात के लिए बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ जाहिद आबिद से। जी जाहिद। जी बिल्कुल, मार्केट में महंगाई का सिलसिला ज्यों का त्यों बरकरार है और इसमें कमी होती नज़र नहीं आ रही। पहले दीगर अशिया महंगी थी, जिसमें आटा, चीनी, घी, चिकन, और अब सब्जियों की कीमतों को भी आग लगी हुई नज़र आती है। ख़ासतौर पर टमाटर की कीमत आउट ऑफ कंट्रोल है। आज टमाटर 35 रुपये फ़ी किलो आज मज़ीद महंगा हुआ है और सरकारी कीमत 175 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है, जबकि मार्केट में कम अज़ कम 240 रुपये फ़ी किलो टमाटर फ़रोख्त हो रहा है और इससे ज़्यादा 300 रुपये फ़ी किलो तक भी अक्सर दुकानों पर टमाटर बेचा जा रहा है। इस तरह दीगर सब्जियों में प्याज 115 रुपये फ़ी किलो सरकारी कीमत उसकी मुकर्रर हुई है, लेकिन मार्केट में 130 से 140 रुपये। आलू की सरकारी कीमत 105 है, लेकिन मार्केट में 120 रुपये फ़ी किलो तक बेचा जा रहा है। इस वक्त सार्फिन हमारे साथ मौजूद है और इनसे बात करते हैं। आप क्या कहेंगे जो इस वक्त मार्केट में महंगाई की? दिहाड़ी कल लगा, काम निकला, कल कुछ आए हैं तो मैंने कहा चलो आज ले आते हैं। ये नहीं ये बना था, जब मैं ये कहा चलो आओ मटर लेके आए। महंगाई ये है कि बस कुछ समझ नहीं आ रहा, काम नहीं है, काम ढूंढने जाओ काम नहीं मिलता, परेशानी। बिल्कुल, दो तरफा मुश्किल है, एक तो रोज़गार के मसाइल हैं और दूसरी तरफ महंगाई है। आप क्या कहेंगे? सूरत हाल की कीमतें को कुछ भी नहीं है। किसी दुकान पे चले जाए, वो कहते हैं 50 रुपये पाइया, ऐसे ऐसे होते हैं मामला ज़्यादातर। इन आवाम को तो चाहिए ना, गवर्नमेंट को भाई सहूलत सस्ती दीजिए इनको। हर गरीब बंदा जो सा सुकून से खा ले। जी बिल्कुल, आवाम ये कहने पे अब मजबूर है कि अब तो पाव की कीमत पता करनी पड़ती है, क्योंकि किलो की कीमत इतनी ज़्यादा होती है कि उसकी ख़रीदारी मुश्किल हो जाती है। और ये सूरत हाल भी इसी किस्म की नज़र आती है, क्योंकि लहसुन इस वक्त भी 600 रुपये, अदरक 700 रुपये फ़ी किलो है, मटर 400 रुपये फ़ी किलो तक बेचा जा रहा है, जबकि भिंडी भी 80 से 100 रुपये फ़ी किलो इस वक्त मार्केट में बेची जा रही है। चिकन ब्रायलर गोश्त की कीमत में थोड़ी सी कमी हुई है, जो कि 12 रुपये फ़ी किलो सस्ता हुआ है और 458 रुपये फ़ी किलो इसकी कीमत मुकर्रर हुई है। लेकिन फार्मी अंडे जैसे जैसे सर्द मौसम होता जा रहा है, इसकी कीमत या तो तेज़ हो रही है या एक जगह पर रुकी हुई है। आज भी 329 रुपये फ़ी दर्जन फार्मी अंडे फ़रोख्त हो रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया। महंगाई से सताए अवाम के लिए मुश्किलात कम न हो सकी, यूटिलिटी स्टोर्स पर रिलीफ बन गया शहरियों के लिए तकलीफ। सब्सिडाइज्ड अशिया की दस्तयाबी यकीनी ना बनाई जा सकी। चीनी दालें और काले चने भी गायब हैं। महंगाई महंगाई और महंगाई, अवाम की एक ही दुहाई, पेट भरने की बुनियादी अशियाए जरूरिया की महंगाई का तसलसल जारी। आटा, चावल और घी फिर महंगाई की लपेट में। 20 किलो आटे का थैला 50 रुपए महंगा, कीमत 2700 रुपए तक पहुँच गई। पुराना चावल 20 रुपए महंगा, फी किलो कीमत 370 रुपए हो गई। दर्जा सोम के घी और ऑयल के 20 किलोग्राम के कार्टन में 300 रुपए का इजाफा। चीनी की फी किलो कीमत 140 रुपए तक जा पहुँची। गंदम की कीमत
कीमत में 300 रुपए फी मन इजाफा हो गया। कीमत 4,400 रुपए फी मन से बढ़कर 4,700 रुपए मन हो गई। शहरी फट पड़े, कहते हैं महंगाई ने मार दिया, बच्चों को 2 वक्त की रोटी नहीं खिला सकते। जिसकी सैलरी 15-20 हज़ार रुपये है, उसका घर का खर्चा जो है वो 30 हज़ार रुपये है, वो 10 हज़ार रुपये कहाँ से लेके आएगा। महंगाई ने तो साथ तोड़ के भाईजान इंसान को जो है ना, वो गरीब आदमी तो बिल्कुल ही मार दिया है, कुछ ये बिलों ने मार दिया है। शहरियों ने हुकूमत और आला हुकाम से अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में फौरी कमी का मुतालबा कर दिया। एक तरफ महंगाई है, दूसरी जानिब मौसम तब्दील होते ही लंडा बाजार की रौनकें भी बढ़ गई हैं। शहरियों की जानिब से गर्म मलबूसात और जूतों की खरीदारी जारी है, जबकि शहरी महंगाई का शिकवा करते भी नजर आ रहे हैं। लंडा बाजार में भी कीमतें गुज़िश्ता साल की निस्बत बहुत ज़्यादा हैं। खरीदारों का शिकवा सामने आया है। तफसीलात के लिए बात करते हैं राहिल अली से। जी राहिल। मौसम में हल्की सी तब्दीली के साथ ही लंडा बाजार की रौनकें भी जो हैं वो बढ़ गई हैं। बड़ी तादाद में शहरी जो हैं वो अपनी पसंद की चीजें खरीदने के लिए बाजार में मौजूद हैं। और मेरा कैमरामैन फखर अगर आपको दिखा सके तो आप ये देख सकते हैं कि सुबह के वक्त ही बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं ताकि अपनी पसंद की चीजें जो हैं वो खरीदारी कर सकें, क्योंकि जैसे ही सर्दी में इजाफा होगा तो यहाँ पर भी जो है वो रेट बहुत ज्यादा जो है वो बढ़ जाते हैं और शहरियों को जो है वो शिकायत रहती है कि ये बाजार भी जो है वो आम लोगों के लिए नहीं रहा। अभी भी सूरत हाल ये है कि बाजार में जो नॉर्मल चीज़ है, नॉर्मल जैकेट है, वो तो 500 से 600 रुपए में दस्तियाब है, लेकिन जो अच्छी क्वालिटी की है वो 1500 से 2000 उसकी कीमत मांगी जा रही है। इसी तरह अगर हम जॉगर्स की बात करें तो जॉगर जो हल्की क्वालिटी के हैं वो 300 से 400 रुपए में दस्तियाब है, लेकिन जो अच्छी क्वालिटी के जिन्हें A+ माल कहा जाता है वो तकरीबन 1500 से 2000 जो है उसकी कीमत मांगी जा रही है। शहरी जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर खरीदारी करते हुए भी नजर आएंगे, बच्चे भी इधर मौजूद हैं। तो जब हमारी लोगों से बात हुई, उनका ये कहना था कि डॉलर तो सस्ता हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी इस बाजार के रेट भी जो है वो कम होते हुए नजर नहीं आ रहे। अभी भी जो है वो बाजार के हिसाब से जो है वो चीजें महंगी है, लेकिन अभी तो प्रॉपर सर्दी भी नहीं आई। तो ये सूरत हाल है कि ज्यादा सर्दी पड़ेगी तो फिर कीमतें जो है वो बढ़ने का भी जो है वो खदशा है। दुकानदारों से जब हमारी बात हुई, उनका ये कहना था कि फिलहाल जो है वो रेट पिछले साल की निस्बत थोड़े से ज्यादा हैं, लेकिन अभी क्योंकि मौसम बहुत ज्यादा सर्द नहीं हुआ तो लोग जो है वो अभी से खरीदारी कर रहे हैं ताकि सर्दियों में इसकी आमद से कबल जो है वो अपनी जरूरत की चीजें जो है वो खरीद सकें। यहाँ पर नौजवान भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं, लेकिन वो जॉगर्स की खरीदारी करते हुए नजर आते हैं। उनसे भी बात करते हैं, पूछते हैं कि क्या कहेंगे। अच्छा ये बताएंगे, इधर आप आए हैं खरीदारी करने के लिए, कोई रेट में फर्क नजर आता है आपको? नहीं, फर्क नजर नहीं आता, जैसे था पहले वैसे ही है अभी भी। और तो क्या कहेंगे कि आम आदमियों के लिए इधर चीजें सस्ती होनी चाहिए? जी बिल्कुल होने चाहिए। जो आम आदमी है जिनका रोजगारी का मसला है तो उनके लिए चीजें सस्ती होनी चाहिए। सस्ती होनी चाहिए, लेकिन इधर भी जो है वो चीजों के रेट जो है वो ज्यादा है। आम आदमी के लिए खरीदारी करना जो है मुश्किल हो चुका है। जी आपका बहुत शुक्रिया। आलूदगी का बायस बनने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। धुआं छोड़ने वाली 3993 गाड़ियां मुख्तलिफ थानों में बंद हैं और 10,515 गाड़ियों को चालान टिकट जारी किए गए हैं। सीटीओ का कहना है कि बगैर ढांपे डिम्पर, ट्रालियों और दीगर लोडर गाड़ियां भी बंद की जा रही हैं। तो आपको इस वक्त अपडेट कर रहे हैं, आलूदगी का बायस बनने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। धुआं छोड़ने वाली 3993 गाड़ियां मुख्तलिफ थानों में बंद कर दी गई हैं और 10,515 गाड़ियों को चालान टिकट्स भी जारी किए गए हैं। आपको बताएं कि सीटीओ का कहना है कि बगैर ढांपे डिम्पर, ट्रालियों और दीगर लोडर गाड़ियां भी बंद की जा रही हैं। तो खबर यह है कि आलूदगी का बायस बनने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। धुआं छोड़ने वाली 3993 गाड़ियां मुख्तलिफ थानों में बंद हैं। 10,515 गाड़ियों को चालान टिकट जारी किए गए हैं और सीटीओ का कहना है कि बगैर ढांपे डिम्पर, ट्रालियों और दीगर लोडर गाड़ियां भी बंद की जा रही हैं। इस वक्त आपको अहम खबर के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। आलूदगी का बायस बनने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है और धुआं छोड़ने वाली 3993 गाड़ियां मुख्तलिफ थानों में बंद कर दी गई हैं। 10,515 गाड़ियों को चालान टिकट्स भी जारी कर दिए गए हैं और आपको बताएं कि सीटीओ का कहना है कि बगैर ढांपे डिम्पर, ट्रालियों और दीगर लोडर गाड़ियों को भी बंद किया जा रहा है। तो खबर यह है कि आलूदगी का बायस बनने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। 10,515 गाड़ियों को चालान टिकट्स जारी किए गए हैं और सीटीओ का कहना है कि बगैर ढांपे डिम्पर, ट्रालियों और दीगर लोडर गाड़ियां भी बंद की जा रही हैं। छुट्टी के रोज़ रवायती नाश्ते पर जोर, लाहौरियों की बड़ी तादाद ने नाश्ता पॉइंट्स का रुख कर लिया। कोई दोस्तों के साथ आया तो कोई फैमिली के हमरा आया, किसी ने नान चने तो किसी ने बोंग पाए का लुत्फ उठाया। शहरियों ने हलवा पूरी पर भी हाथ साफ किए। तफसीलात जानते हैं सामिया सईद से। जी सामिया।
बिल्कुल, मैं इस वक्त चाँद बाग के इलाके में मौजूद हूँ। आज छुट्टी का दिन है और यही देखा जा रहा है कि ख्वाबों की दुकानों पर लाहौरियों ने जो है वो डेरे जमा लिए हैं और यहाँ पर यही देखा जा रहा है कि दुकानों पर जो है वो लाहौरी आ रहे हैं और सुबह सवेरे जो है वो नाश्ता करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई अपने फ्रेंड्स और कोई तो जो है वो फैमिली के हमरा आ रहा है और खूब गर्मा गर्म नाश्ता कर रहा है। और यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि वैरायटी जो है वो नाश्ते की यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। कोई नान चने खा रहा है, कोई बोंग पाए खा रहा है, कोई गर्मा गर्म जो है वो पराठों पर हाथ साफ करता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरे साथ यहाँ पर जो है कुछ फ्रेंड्स मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, छुट्टी का दिन है, क्या खा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, माशाल्लाह। तकरीबन महीने में 5-6 दिन हमारे ऐसे होते हैं जो यहाँ पे डेरे लगते हैं हमारे दोस्तों के, फ्रेंड्स के साथ, और अच्छा जायका है, तो मज़ा आता है इनका नाश्ता करने में। 2-3 वैरायटी है इनके पास, लेकिन बहुत मज़ा आता है इनके साथ ना। मैं आप बताएं, आप कैसे एंजॉय कर रहे हैं? फ्रेंड्स के साथ आज नाश्ता कर रहे हैं? भाई के साथ, हम आए भाई के जिला के साथ जाएंगे, हम नाश्ता करेंगे। मैं तो चले जाऊँगे इंशाल्लाह। बहुत मज़ा है हमें, खाना खाने का बहुत मज़ा है। देखा यहाँ पर जो फ्रेंड्स हैं वो ग्रुप बनाकर बैठे हुए हैं और इनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि सुबह सवेरे दोस्तों के साथ आए हैं, गर्मा गर्म नाश्ता कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। और यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि दुकानों के बाहर भी जो है वो अच्छी खासी लाइनें लगी हुई दिखाई दे रही हैं। लोग जो है वो यहाँ पर सुबह सवेरे गर्मा गर्म नाश्ता कर रहे हैं। ना सिर्फ जो है वो यहाँ पर बैठ कर नाश्ता किया जा रहा है, बल्कि पैक करवा के घर वालों के लिए भी लिया जा रहा है। शुक्रिया सामिया। छुट्टी के रोज़ नौजवान क्रिकेट खेलने में मशगूल हैं। ग्रिफिन ग्राउंड में नौजवानों का रश लग गया है। क्रिकेट खेलने के साथ साथ नौजवान फ़खर जमान की धुआंधार बैटिंग से भी खुश नजर आए हैं। शायकीन ने पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने की भी उम्मीदें लगा ली हैं। तफसीलात जानते हैं ज़ैन अली से। जी ज़ैन। जी बिल्कुल, इतवार के रोज़ शहरी अपने दोस्तों के हमरा मुख्तलिफ क्रिकेट ग्राउंड्स का रुख कर लेते हैं। शायकीन क्रिकेट दोस्तों के हमरा जो है अपने क्रिकेट के शौक़ को पूरा करने के लिए दोस्तों के साथ क्रिकेट मैच खेलने के लिए मुख्तलिफ ग्राउंड्स का रुख करते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर के इलाके मुगलपुरा की ग्रिफिन ग्राउंड में, जहाँ पर बड़ी तादाद में शहरी जो है अपने दोस्तों के हमरा क्रिकेट खेलने पहुँचे हैं। मज़ीद शायकीन क्रिकेट मेरे साथ मौजूद है, उनसे ही मज़ीद बात करते हैं। सर आप बताइएगा, इतवार के इतवार दोस्तों के साथ ऐसे ही क्रिकेट क्या होती है और क्या प्लान होता है? और ये बताइएगा, कल का भी एक मैच हुआ है, फ़खर जमान की उम्दा कारकर्दगी, और पाकिस्तान जो वर्ल्ड कप से बाहर जा रहा था वो जाते जाते वापस आ रहा है। फ़खर जमान की बैटिंग देख के हम सेमीफाइनल के लिए दोबारा पुरुम्मीद हो गए हैं कि इंशाल्लाह हम सेमीफाइनल खेलेंगे। और ये वन मैन शो था कल फ़खर जमान का, उसके बिना ये पॉसिबल नहीं था। बाकी बाबर आज़म एंड कंपनी ने तो पूरी कोशिश की थी कि हम बाहर आ जाएं, लेकिन फ़खर जमान वापस ले आया हमें। आप बताइएगा, इसी तरीके से दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने थे, कितना जुनून है? बाकी सारा दिन क्या इतवार का टाइम मिलता है और इसके बाद का क्या प्लान हो? इतवार को तो हम हर इतवार को इधर आते हैं मैच खेलने, क्योंकि सब कोई ना कोई बिज़नेस वाला है, कोई जॉब वाला है, उसके अलावा टाइम नहीं मिलता, तो हर संडे को हम इधर होते हैं। बच्चों से बात करते हैं। आप बताइएगा, आप भी इसी तरीके से क्रिकेट खेलने आते हो संडे के संडे? संडे हम डेली आते हैं। संडे के संडे हम सुबह आ जाते हैं, उठ के नहा धो के हम आ जाते हैं क्रिकेट खेलने। और ये बताओ कि कल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच था, फ़खर जमान की बैटिंग देख के मज़ा आ गया। क्या छक्के मारे उसने यार, मज़ा आ गया। इसलिए हम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर देंगे जी। आज बिल्कुल बच्चे और बड़े नौजवान जितने भी हैं वो कल के मैच के बाद काफ़ी पुरुमीद दिखाई दे रहे हैं। और इतवार के इतवार अगर मेरा कैमरामैन बिलाल आपको दिखा सके तो ऐसे ही क्रिकेट शायकीन क्रिकेट जो है दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने आते हैं और अपने क्रिकेट के शौक़ को जो है वो इंजॉय करते हैं। और पाकिस्तानी टीम को जो कल की जीत के बाद जो है वो काफ़ी पुरुमीद दिखा रहे हैं, पुरजोश दिखाई दे रहे हैं और उम्मीद बांध रहे हैं कि पाकिस्तान अपने वर्ल्ड कप में इसी तरीके से कारकर्दगी को बरकरार रखेगा और सेमीफाइनल के लिए जो है वो क्वालिफाई करेगा और वर्ल्ड कप जीत कर जो है वो पाकिस्तान टीम जो है वो अपने वतन लौटेगी। जी ठीक है जैन, बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आला पंजाब का घोड़ा चौक फ्लाईओवर मंसूबे की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार है। मोहसिन नकवी कहते हैं खुशी है कि रात से सुबह तक काम हो रहा है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का घोड़ा चौक डिफेंस मोड फ्लाईओवर प्रोजेक्ट का दौरा। वज़ीर आला ने प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया और स्टील फिक्सिंग के अमल का मुशाहिदा किया। मजदूरों से मुसाफा किया और तेज रफ्तारी से काम करने पर उन्हें शाबाश दी। मोहसिन नकवी का कहना था कि मंसूबे पर काम के दौरान मौसर ट्रैफिक मैनेजमेंट को यकीनी बनाया जाए। मंसूबा मुकम्मल होने से शहरियों को आमदोरफ्त में सहूलत और आसानी मिलेगी। सेंट्रल पॉइंट गुलबर्ग से घोड़ा चौक डिफेंस मोड़ तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर होगा। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CBD इमरान अमीन
और कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा ने वज़ीर आला को ब्रीफिंग दी, जिसमें बताया गया कि घोड़ा चौक फ्लाईओवर 3 लेन्स पर मुश्तमिल है। मंसूबे पर तकरीबन 1 अरब 90 करोड़ रुपए लागत आएगी। इमरान अमीन का कहना था कि मंसूबे को वक्त से पहले मुकम्मल करेंगे। मंसूबे की तकमील के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सूबाई वजीर अजफर अली नासिर, डिप्टी कमिश्नर, DIG ऑपरेशंस, CTO और मुतालिका हुकाम भी इस मौके पर मौजूद थे।